ایک اور دھماکہ ہو گیا. کس کی سازش ہے؟ ایک تہلکہ انگیز کہانی. پاکستان میں حملوں کے پیچھے کون؟ چینی کیوں ٹارگٹ؟ کہانی دیکھ کر آپ دہل جائیں گے. پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش. عالمی کھیل. چھبیس تاریخ کا دن، بوقت 1 بجے، بمقام بشام سے 3 کلومیٹر دور لاہور نالا. معمول کے مطابق چینی قافلہ آ رہا تھا. ایک کوسٹر، ایک بس اور آگے پیچھے سیکورٹی. جگہ انتہائی تنگ. اس انتہائی تنگ جگہ پر سفر جاری تھا کہ یکدم ایک گاڑی آتی ہے اور ٹکرا جاتی ہے. یہ واقعہ اس افسوسناک واقعے کا منظر جس میں 5 چینی باشندے جاں بحق ہوئے اور 1 پاکستانی شخص. اصل میں کہانی کیا ہے اور یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس کی تحقیقات کے پیچھے ہم جب جاتے ہیں تو تہلکہ انگیز کہانی سامنے آتی ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر چینی اہلکاروں کی ہی گاڑی پر کیوں حملہ کیا گیا، اور یہ چینی باشندے آخر جا کہاں رہے تھے. جب آپ کو یہ کہانی معلوم ہوتی ہے تو آپ اس حملہ آور گروہ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں جو پاکستان کے امن و امان کو تباہ کر رہا ہے. یہ ایک عالمی سازش کا حصہ ہے یا پھر یہ کھیل کچھ اور ہے؟ کیا اس کا تعلق کہیں پر عراق، شام اور پھر افغانستان سے ہوتا ہوا امریکہ، چین اور روس تک تو نہیں مل رہا ہے؟ آخر پاکستان میں یہ سب کرنے کی کوششیں کیوں ہو رہی ہے؟ یہی آج کی کہانی ہے. لیکن اس سے پہلے اس واقعے کو ذرا سمجھتے ہیں اور پھر ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. یہ بات ہے خاص طور پر عمران خان کے دور حکومت کی، سن 2019، جس وقت پاکستان میں بجلی کا بحران اپنے انتہا کو چھو رہا تھا. اس صورتحال میں عمران خان کی حکومت نے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا جس کا نام تھا داشو ڈیم. دریائے سندھ پر قائم کیا جانے والا یہ ڈیم کہ جس کے ساتھ بجلی پیدا کرنے کا ایک بڑا منصوبہ بنایا گیا، قریباً کوئی 4500 میگا واٹ بجلی یہاں سے پیدا ہوگی اور اس پیداوار سے پاکستان کے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا. لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے یہاں پر فنڈنگ کی ضرورت تھی اور وہ فنڈنگ کے لیے پہلے ورلڈ بینک سے بات کی گئی اور پھر یہ سی پیک میں شامل ہوا. سی پیک کیا ہے؟ سی پیک در حقیقت جس کے تحت چین پاکستان میں قریباً کوئی 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. اس پروجیکٹ کو اس سال یعنی 2024 میں مکمل ہو جانا تھا. لیکن اس سے پہلے ذرا سا یہ سمجھیے کہ یہ سی پیک ہے کیا. 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری یہاں پر چین کو کرنی ہے اور اس میں سڑکیں ہیں، اس میں ڈیم ہے، اس میں صنعتی زونز ہیں اور اس میں پائپ لائنز ہیں. داشو ڈیم ایک معاہدے کے تحت ہے اور وہ سی پیک کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ہے، یعنی کہ اس کا بھی ایک حصہ ہے 1+4. 1+4 آخر یہ 1+4 کیا ہے؟ 1+4 کا مطلب ہے 1 سی پیک اور 4 کا مطلب ہے بندرگاہ، توانائی، مواصلات اور صنعتی زون. سوچئے گا ذرا غور سے، اس 1+4 میں کیا ہے؟ سی پیک، بندرگاہ، گوادر، اس پہ حملہ ہوا ایک دن پہلے. توانائی، داشو ڈیم اس پر حملہ ہوا. کیا ایک بڑی گہری سازش ہے؟ سنتے رہیے پھر میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں.
अब ये दासू डैम का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था 2024 में, लेकिन इसमें मुसलसल रुकावटें आती रही और इसी जगह पर सन 2021 इसी जगह पर इसी डैम के लिए एक बार पहले भी चीनी बाशिंदों पर हमला हुआ, जिसमें 13 लोग जहां बहक हुए। किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। बाद में तहकीकात से इसमें तहरीके तालिबान के 14 लोग मुलव्विस पाए गए, जिसमें से 2 को पाकिस्तान की अदालतों ने सजाए मौत दी। तो आखिर तहरीके तालिबान इस मामले को में शामिल रही, मगर कैसे, जरा समझिए। अब आ गए, आपको समझ में आ गया होगा कि दासू डैम पर चीनी बाशिंदों पर हमला क्यों हुआ। वही गवादर में हमला हुआ, वही यहां पर हमला हुआ। नुकसान सीपैक और पाकिस्तान की मईशत। लेकिन वजह क्या है, वजह क्या है? जब ये वाकया पेश आया, हम दोबारा आपको इस वाक्य की तरफ लेकर जाते हैं। एक गाड़ी आती है और वो चीनी बाशिंदों की ही गाड़ी से टकराती है। ये बहुत मजबूत रेकी की गई थी। क्यों रेकी की गई थी? क्योंकि चीनी हफ्ते में एक दिन यहाँ आता है, इस्लामाबाद से यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में दासू डैम की तरफ। और ये वक्त अक्सर गैर मुय्यन होता है, यानी कि कोई मुय्यन वक्त नहीं है कि इसी वक्त पर, इसी फिक्स टाइम पर आना है। ये तब्दील होता रहता है। इसकी रेकी की गई इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेकर यहां तक। और फिर ये मकाम का तयन किया गया क्योंकि बशाम से 3 किलोमीटर दूर ये नाला है कि जहां पर आकर 2 गाड़ियां एक साथ आमने सामने की जा सकती है। इस शख्स ने मौके का इसी जगह का तयन किया और गाड़ी को इसी जगह से टकरवाया और टकरवाया इस तरीके से कि गाड़ी नाले में जाकर गिरी। गाड़ी आगे और पीछे दोनों तरफ सिक्योरिटी की गाड़ी होती है और गाड़ी आकर दूसरी उससे चीनी बाशिंदों की गाड़ी से टकराती है। जब वहां पर 12 मिनट के बाद रेस्क्यू की टीम पहुंचती है तो वो देखती है कि 2 लाशें बाहर गिरी हुई हैं, जबकि 4 लाशें अंदर गाड़ी में जल रही हैं। रेस्क्यू टीम फौरन आग बुझाने की कोशिश करती है और जब तक वो आग बुझाती है तो उन चारों के चेहरे पहचान में नहीं आ पाते। सिर्फ 2 लोगों के चेहरे पहचान में आते हैं, मगर असल कहानी उस दुश्मन को पहचानने की है कि आखिर ये धमाकों के पीछे मामला क्या है। एक बार फिर पीछे चलते हैं और पीछे चलकर जरा सा इस बारे में देखते हैं कि जनाब के सीपैक में है क्या, यानी कि 1+4 का मतलब मैंने आपको बहुत वाज़ेह तौर पर यह बताया कि 4 मंसूबे: बंदरगाह, तवानाई, मवासलात यानी कि ट्रांसपोर्ट और सनती जोन। गवादर पर हमला हुआ, तुर्बत पर हमला हुआ और उसके 2 दिन के बाद यहां पर हमला हुआ। दोनों के दरमियान हजारों किलोमीटर का फासला है। वहां पर बीएलए उसकी जिम्मेदारी कबूल करती है, लेकिन आप जगह और वक्त को एक तरफ रखिए और अगर इनके पीछे छुपे हुए राजों को ढूंढिए तो आपको अंदाजा होगा कि मकसद सिर्फ और सिर्फ सीपैक और पाकिस्तान और चीन के दरमियान नुकसान पहुंचाना ही है। यहाँ पर इस वाक्य की जिम्मेदारी पहले भी किसी ने कबूल नहीं की। ज़ाहिर बीएलए यहाँ पर आ नहीं सकती। बीएलए का तरीका वारदात ये है नहीं। खुदकुश हमले आम तौर पर जिस तरीके के होते हैं इस इलाके में, और ख़ास तौर पर ये इलाका जो कि कोहिस्तान कहलाता है और कोहिस्तान की बॉर्डर आगे चलकर मिलती है सिंकियांग सूबे से। और यहाँ पर आपके इल्म में होगा कि दाइश का फैक्टर भी कुछ अरसे से काफ़ी सरगर्म रहा है। दाइश आम तौर पर जो इल्जामात आयद होते हैं उसमें ये बात कही जाती है कि दाइश का फैक्टर आमतौर पर बैनुल अक़वामी सियासत का एक बड़ा अहम जुज़ है और दाइश उन्हीं जगहों पर हमले करता है जहां से दीगर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब हों, फिरका वाराना मामलात में इजाफा हो। अब मामला यह कि इस हमले की पहले भी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने कबूल नहीं की, और टीटीपी ने कबूल नहीं की, बल्कि अब तो फिर यहाँ है कौन? आइए हम जरा सा पीछे चलते हैं।
बीबीसी के मुताबिक जो पाकिस्तान के इदारों ने इंक्वायरी की थी, उस इंक्वायरी में बड़े अहम राज फाश हुए थे। सन 2021 में दासू डैम को ही टारगेट किया गया था। इसको टारगेट करने के कई मकासद थे। पहला मकसद यह है कि सीपैक को नुकसान पहुंचाया जाए। दूसरा मकसद पाकिस्तान के बिजली का बहरान बरकरार रहे। तीसरा, ये बैनुल अक़वामी सतह की एक खबर बनती है। और चौथा, यहाँ पर आकर पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाना है। अब 2021 में जब बीबीसी के मुताबिक इस पूरे वाकयात की तहकीकात हुई थी, तो बड़े अहम इंकशाफात सामने आए थे और इंकशाफात से भरपूर एक नई कहानी सामने आई थी। ये कहानी क्या है, ये अगला जुज़ है। अब इस कहानी में ये सामने आया कि जिस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर फ्रीलांसर काम करने वाले होते हैं, जिनका कोई कंपनी नहीं होती, वो किसी के मुलाजिम नहीं होते, इसी तरीके से अब इस पूरे खत्ते के अंदर फ्रीलांसर अटैकर भी बन चुके हैं, जो फ्रीलांस हमले करते हैं और जिहाद के नाम पर लोगों को तैयार करते हैं और फ्रीलांस अटैक करते हैं। ये एक बहुत अहम नुक्ता है और इसमें जो एक बड़ा नाम बताया जाता है, वो एक कमांडर तारिक का बताया जाता है। ये तारिक कमांडर बटन वाले के नाम से मशहूर है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक शुबा ये जाहिर किया जाता है कि इसका ताल्लुक टीटीपी से नहीं है, जिस तरीके से पहले टीटीपी से रहा है या टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन टीटीपी के ही असर में बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर जहादी मौजूद हैं जो अपने आप को जहादी करार देते हैं, लेकिन उनका उन तंजीमों से बरह रास्त ताल्लुक नहीं, बल्कि ये किसी और इशारों पर काम करते हैं। इसी में ये बटन वाला भी शामिल है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीककार इस बात को देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर ये बटन वाला ही आज़ाद एक अटैकर ग्रुप मौजूद है कि जो लोगों को जहाद के बहाने जमा करता है और उसके बाद ये एक इंटरनेशनल एजेंडे पर काम करता है और उस एजेंडे के तहत इसकी कड़ियां पूरे पाकिस्तान में और इस सीपैक के साथ जाकर मिलती है। अगर आपको इस बात का अंदाजा हो कि किस तरीके से ये मुख्तलिफ लोगों को ऑपरेट मुख्तलिफ खत्तों के अंदर किया जाता है, तो आपको आसानी से अंदाजा हो जाएगा। अब जिस तरीके से आप ये बात देखिए कि जो रूस के अंदर हमला हुआ, उस रूस के अंदर हमले में जो लोग गिरफ्तार हुए, वो ताल्लुक उज़्बेकिस्तान से मुसलमान हैं। लेकिन अगर अब रूस के दावे को देखा जाए, तो इसमें बात वाज़ेह होती है कि इन्होंने ट्रेनिंग यूक्रेन के अंदर हासिल की और ये यूक्रेन के अंदर 6 महीने तक रहे। जबकि अमेरिका ये दावा करता है कि इनका ताल्लुक दाइश से है। लेकिन अगर दाइश की यही टीम फ्रीलांसर के तौर पर यूक्रेन में काम करती है और यूक्रेन से ऑपरेट होकर यहाँ पर आती है, तो रूस का इल्ज़ाम है कि इसका ताल्लुक उस आलमी एजेंडे के साथ है जो रूस को जद पहुंचाना चाहता है। हैरतअंगेज तौर पर इन लोगों से जब इन्वेस्टिगेट की गई है, तो ये 6 महीने से अपने घरों पर उज़्बेकिस्तान में पैसे भी उसी तरीके से भेजते थे, जिस तरीके से माहाना खर्च भेजा जाता है। तो इनको वहां कोई ना कोई कमाई का जरिया जरूर मौजूद था। इसी तरीके से ये जो फ्रीलांसर मुख्तलिफ टारगेट किलर्स या टारगेट ऑपरेटर्स मौजूद हैं, इस पर काफ़ी शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में किसी एक आलमी एजेंडे के तहत पाकिस्तान के अमन व अमान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखना ये कि तहकीककार इस मामले तक कहाँ तक पहुंचते हैं, पाकिस्तान के इदारे इस मामले को कहाँ तक पहुंचाते हैं और क्या इसे किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है या नहीं पहुंचाया जाता है। बड़ी अहम खबर आपको हमने दी है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए।